یہ ساری صورتحال تب تک نارمل رہی جب تک سہیل آفریدی حیدرآباد تھے. حیدرآباد سے جیسے ہی گاڑیوں کا رخ کراچی کی جانب ہوا, ساری صورتحال بدلنے لگی. سامنے سندھ پولیس ڈنڈے لے کر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی. سہیل خان آفریدی خود رستے اس وقت کھلوا رہے ہیں اور یہ مناظر ہے. یار مہمان آئے ہوئے, آپ لوگوں نے مہمان کو یہ جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے. ان کو جلسے کا خوف ہے, جلسہ تو ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. پاکستان میں 11 جنوری کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. عموماً ہم اس ٹائم ولاگ اپلوڈ نہیں کرتے, لیکن کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں کہ ولاگ اپلوڈ کرنا ضروری ہے. کراچی جلسے کو لے کے آج کا دن بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے. کچھ ٹویسٹ اینڈ ٹرنس کے ساتھ ساتھ یہ پورا سسپینس اس ٹائم چل رہا ہے. سیاسی فلم ایک طرح سے جاری ہے, لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. تو رات گئے تقریباً 3-3:30 بجے سے لے کے اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انہوں نے بالکل ہی ماحول بدل دیا ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں, دوسری جانب سندھ حکومت ہے جنہوں نے اچانک سے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں کہ ماحول بالکل بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے. لیکن اس سارے منظرنامے میں صورتحال تب تک ٹھیک تھی جب تک سہیل آفریدی حیدرآباد میں موجود تھے. اپنا وہ جو بھی روٹین کے مطابق ساری چیزیں تھیں وہ کر رہے تھے. تب تک حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے, ساری پلاننگ کے اکارڈنگ ہر چیز چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی ان کی گاڑیاں حیدرآباد سے واپسی کی جانب مڑی ہیں, رکاوٹوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے کانوائے کو روکنے کے لیے موٹر وے کے اوپر جگہ جگہ پر رکاوٹیں. ایک رکاوٹ اس کو عبور کرتے کرتے راستہ کھلواتے کھلواتے ٹائم لگ گیا, پھر دوسری رکاوٹ. اس دوران کیا ہو رہا تھا, ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلنے لگیں کہ جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ جو ملاقات تھی جو کہ پیر کے روز ہونی تھی وہ منسوخ کر دی گئی. جب ان کے حکومتی ترجمانوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں ہے, صبح آپ کو چیک کر کے بتائیں گے. لیکن ٹیلی ویژنز پر ذرائع سے یہ خبریں کنفرمڈ ہو کے چلنے لگ گئی کہ یہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور آئی کہ باغ جناح جہاں پر جلسے کا NOC دیا گیا آخری لمحات میں, وہاں پر پولیس کا کوئی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور پولیس پہنچ گئی وہاں پر. انہوں نے وہ باغ جناح خالی کرا لیا. وہاں پر جو کارکنان موجود تھے ان کے ساتھ بھی کوئی آمنا سامنا جیسے فیس آف جیسی سچویشن ہوئی اور وہ سارے لوگ انہوں نے وہاں سے نکالنا شروع کر دیے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماحول ہے, یہاں پر ورکرز اور سندھ پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. سندھ پولیس کے یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آنے لگیں تو سب کی آئی بروز ریز ہوئیں کہ خود تو حکومت نے NOC دیا, خود کنڈیشنز لگائیں, سارا کچھ کیا, ہر چیز ایز پر پلاننگ چل رہی تھی یا جو طے شدہ معاملہ تھے اس کے اکارڈنگ چل رہی, تو پھر یہ اچانک کیا ہوا. لیکن صورتحال اس وقت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی جب سہیل آفریدی کے کانوائے کو حیدرآباد سے واپسی پہ کراچی جانے سے روکنے کی کوششیں شروع ہوئی. پہلے لگا کہ یہ کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ کوئی ایک آدھ رکاوٹ ہو سکتی ہے, اس کو انہوں نے خود گاڑیوں سے نکل کے ان کا پورا جو قافلے کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے سم ہاؤ کلیئر کرایا, اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا اس میں. لیکن تب تک وہ اتنی تشویش کی بات نہیں سمجھی جا رہی تھی, آلدو کہ یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی ایک رکاوٹ کراس کی تو آگے ایک اور رکاوٹ کا سامنا, پھر وہاں پر ٹائم لگ گیا اور یہ احساس ہونے لگ گیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دا بال, کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. اور پھر تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلی, وزیر اعلیٰ خود گاڑیوں سے باہر آئے, ان کے لوگ آئے, انہوں نے رکاوٹوں کو جیسے تیسے کلیئر کرنا شروع کیا اور پھر کچھ ایسے سنسان راستوں سے وہ نکلنے لگ گئے جہاں سے نکلنے کا فیصلہ کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا, لیکن حالات کے پیش نظر انہیں یہ کرنا پڑا. اور پھر وہاں پر بھی رکاوٹوں کا سامنا, مطلب ایسا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ شروع ہو گئی کہ جہاں جہاں پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی موو ہو رہے ہیں اس کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں اس طرح سے رکاوٹیں ہوں کہ وہ کراچی نہ پہنچ سکیں. اس صورتحال کے پیش نظر جب یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر آنے لگ گیا, ہر طرف سے رپورٹ ہونے لگ گیا, تو پھر سہیل آفریدی نے خود بھی ٹویٹ کر کے بتایا. کل تک وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جناب ہمارا اچھا استقبال کیا گیا. انہوں نے یہ کہا بھی کہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
अभी तक तो हमें बेनज़ीर की याद ताज़ा हुई है, भुट्टो का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि अब आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से डील करते हैं। और फिर जिस तरह से जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी कुछ टाइम पहले, उसका इजहार उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए किया। अब ये ट्वीट उनका बतौर वज़ीर आला ट्वीट है, ये नोटिस होगा, ये हर जगह रिपोर्ट होगा। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 6 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूँ। अभी 4:30 बजे सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की ज़िंदगी के साथ भी खेल रही है। और फिर आगे उन्होंने शिकवा किया कि जो रिवायात एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में अपनाई जा रही हैं, ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और उन्होंने आगे भी कुछ डिटेल्स लिखी है। ये कराची और हैदराबाद के दरमियान जो फासला है टोटल, मैंने अभी कभी सफ़र तो नहीं किया लेकिन गूगल करके चेक किया तो बताया गया कि 160 से 165 किलोमीटर तक का ये फासला है, जो कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर तय हो सकता है, लेकिन इनको 5 से 6 घंटे लग गए। खैर, अच्छी बात यह है कि इन सारे हालात के बावजूद सुहेल आफरीदी खैरियत से कराची पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया, व्लॉग के एंड पे आप वो भी सुन लेंगे। आवाज़ उनकी बैठी हुई है, जारी बात है पूरे दिन की थकावट है, नॉन स्टॉप 24/7 वो चल रहे हैं, एक कन्वेंशन दूसरा कन्वेंशन, स्ट्रीट मूवमेंट, इधर मुलाकात उधर, तो उनकी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, रेस्ट भी नहीं है। और आज जलसे का दिन भी है तो रेस्टलेस, और गला उनका नारे लगा लगा के बैठा हुआ है। हालत उनकी बता रही है कि वो कितना रेस्टलेस हैं, और ऊपर से फिर ये सारा सफ़र उन्हें जिस तरह से करना पड़ा तो वो यकीनन गिला कर रहे हैं, इस वीडियो में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे साथ जो किया गया वो मुनासिब नहीं था। वीडियो मैं दिखाता हूँ अभी कुछ ही देर में। तो जिस तरह से ये सड़क के ऊपर से गाड़ियाँ क्रॉस करते करते लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर जो खड़े पुलिस एहलकार हैं वो ख़ुद बता रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्यों रुकावटें लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें हुकाम बाला की जानिब से ऑर्डर है, हुकूमत की जानिब से ऑर्डर है रुकावटें खड़ी करने का या रास्ता ब्लॉक करने का। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। जितना आपने प्रोटोकॉल दिया, जितना आपने वो एक अच्छा जेस्चर बनाया, वहाँ के सहाफ़ी भी आपकी तारीफ़ें कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे तो माहौल ही बिल्कुल बदला बदला, जो यहाँ से कवरेज करने के लिए गए। और अब वही सारे सहाफ़ी जो है वो अब भागते फिर रहे हैं कि क्रैकडाउन हो रहा है। और एक सहाफ़ी वो तारड़ साहब है, वो बता रहे थे कि मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है। तो इस तरह से मामला जो है वो डेवलप हुए हैं रातों रात। तो ये सिचुएशन कोई बहुत आइडियल नहीं है। ताहम दूसरी जानिब अब ये ट्रेंड चल रहा है कि जलसा तो होगा। अब जितनी इसकी हाइप बन चुकी है, जितनी लोग अब मोटिवेट हो के इसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, आखिरी लम्हात पे अगर आप ये कहें कि जनाब रुकावटें खड़ी कर देंगे और जलसा नहीं होगा, तो क्या पीटीआई के लोग या अहदेदारान चुप करके मान लेंगे कि ठीक है जी जलसा नहीं हो सकता, हम वापस चले जाते हैं? तो ये खाम खा माहौल जो है, जो इतना अच्छा आइडियल लग रहा था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कि देखें ये कितना आइडियल सिचुएशन लग रही है कि एक हुकूमत वेलकम कर रही है, आपको प्रोटोकॉल दे रही है। ये अगर रुकावटें खड़ा करना प्रोटोकॉल है तो ये तो बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन है जो समझ में नहीं आ रही। वज़ीर आला से मुलाकात मनसूख, ताजरों से मुलाकात मनसूख, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात मनसूख, वज़ीर आला के रास्ते में रुकावटें, बाग जना में पुलिस का पहुंच जाना, ये सारा कुछ कोई इत्तफाकन तो नहीं है। और फिर एनओसी भी डिले करके जारी किया गया, यानी ताख़ीर उसमें भी हुई जारी करने में। जब पीटीआई ने कहा ना कि हम फिर मज़ार कायद के सामने वाली जो रोड है वहीं पे जलसा करेंगे, तो फिर उसके बाद एनओसी जारी हुआ कि नहीं, आप उसी जगह पे करेंगे जो जगह आपने कही थी, यानी बाग जना में। पीटीआई ने कहा कि हम इतने कम टाइम में कैसे इंतज़ामात करें, आप हमें मुकर्रर टाइम गुजरने के बाद एनओसी दे रहे हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि चलें बदमज़गी ना हो। उन्होंने इस बारे में भी थोड़ा वो क्या कहते हैं कोऑपरेट किया कि चले हम लेट ही सही लेकिन उधर कर लेंगे। और फिर उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया, पहले दिन 2 बजे का कहा, फिर मेरा ख्याल शाम का उन्होंने टाइम कर दिया कि हम शाम 5 बजे ये जलसा करेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने टाइम भी एक्सटेंड किया। कोऑपरेट तो वो कर रहे थे, लेकिन ये जो वज़ीर आला के साथ रुकावटों वाला मामला है, इसने थोड़ा सा माहौल तब्दील कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वज़ीर आला से मुलाकात हो पाती है, इस जलसे को होने में और इसको रोकने में क्या क्या मुश्किलात दरपेश रहेंगी। एक तरफ पूरी कोशिश होगी कि जलसा हो, पीटीआई तो करेगी कोशिश, दूसरी जानिब जिस तरह से रुकावटें हैं, इतनी आसानी से जलसा हो लेने देना ये भी थोड़ा सा अब डाउटफुल लग रहा है। और मेरा ख्याल है मोमेंटम इतना ज़्यादा बन गया, क्राउड इतना ज़्यादा आया इस 2 दिन की एक्टिविटी में
शायद सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना ज़्यादा क्राउड या इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस इनको मिलेगा। तो अगर जलसे में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए तो फिर माहौल किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, ये मेरा ख्याल है कंसीडर किया गया है। तो अब देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थोड़ी सी एक दो विजुअल्स हैं, थोड़ी फुटेजेस हैं, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ, वो भी देखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यार मेहमान आए हुए आप लोगों ने, मेहमान है तो ये इज्जत है। धूप मरने का मकाम है, खुदा की कसम यार। नाज़रीन, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सुहेल खान अफरीदी खुद रास्ते इस वक्त खुलवा रहे हैं और ये मनाजिर हैं। शायद खटक साहब खुद उतर आए हैं गाड़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम अभी तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुँचे कराची, अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। मेरी आवाज़ चूँकि ख़राब है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज जो है तमाम हमारे जितने भी कराची के बहन भाई हैं, गयूर पाकिस्तानी हैं, उन तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो इन्होंने देखा कि 3 साल 3.5 साल बाद भी लोग अभी भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, कराची के मुख्तलिफ अज़ला में, बल्कि पूरे सिंध में, और लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी लगाते रहेंगे। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं, उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। इंशाअल्लाह ताला हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह।